Good afternoon, sir. Good afternoon, Amarveer. Good afternoon, Chetandeep. Yes, Amarveer, yesterday you presented that अपने poems आपने release की थी कल, set of poems or like that. Yes, sir, it was published around a month ago, but it was released yesterday. It was released yesterday. बहुत बढ़िया. And किस में लिखी है, किस language में लिखी है अपने poems? हिंदी में. हिंदी में लिखी है. Good, good. So we have yesterday वो देखी थी जो आपने वो फोटो वगैरह जो ओरेकल में डाली हुई थी वो कल ही हुई फोटो आपकी वो प्रिंसिपल सर के साथ और बानी मैम के साथ. हाँ जी सर, इसीलिए कल मैं बीच में क्लास आईपी की लीव कर दी थी. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. वेल डन, गुड जॉब. थैंक यू सर. So ये है कि हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है. दैट इज वी कैन नॉट हैव स्टिक टू द सिंगल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के ऊपर भी काम करना चाहिए हमें. Yesterday we were discussing about the constraints. So we have discussed number of constraints and we will continue from there onwards only. So this is about the constraints. So who will initiate the discussion on constraints? Yes, Mehak, आप बताओ about constraints. सर कंस्ट्रेंट्स वो कंडीशन होती है कि अगर हमने कोई वैल्यू डालनी है तो वो वैल्यू उस कंडीशन को अगर फॉलो करती है तब वो वैल्यू डलती है. हमें सीक्वल में कई टाइप्स की कंस्ट्रेंट होती हैं जैसे नोट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट. ठीक है, ठीक है. एक किसी ने ये वर्ड सुना है डाटा वैलिडेशन? someone knows about data validation? Yes, Amarveer. Data validation, when we specify constraints, that means we are specifying some rules by which that data needs to be filled. Like if it is not null, then no null value should be entered. And data validation is when the data to check whether the data which we are entering is valid or not according to the set of rules specified for it. Yes, yes. So data validation means that when we are entering the data, so उसके ऊपर जो हमने check लगाए हुए हैं, clear? So again, those checks are basically applied using the constraints. So yesterday we have gone through the number of constraints. We started with the not null constraint. So
Who will answer on this not null constraints? Yes, Jasmine. 11C, not null constraint. Sir, it is a constraint in which we have to fill anything with some value. It cannot be leave as blank. Yes. So not null जो constraint है, that it basically ensures that user should not enter, और उसको उस cell को you should not keep that cell as empty. So that is what we have in not null constraint. Then we covered one more, that is next is the unique constraints के बारे में अभी नहीं हमने किया था, that is we have done check constraint. हाँ यस चेतन दी, आप बता सकते हो चेक कंस्ट्रेंट के बारे में? Say whatever you know on check constraint. So Chetan Deep is taking a lot of time. Yes, Muskan. सर चेक कंस्ट्रेंट मतलब जैसे हमारे पास जैसे पेजेस हैं, पेज इज मोर देन 0, इस पेज की वैल्यू लेस देन 0 या फिर 0 नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं उसको चेक करने के लिए कि वो पेज की वैल्यू लेस देन 0 या 0 नहीं होनी चाहिए. So check constraint है basically where we want to ensure that कि जो values and like yesterday we have taken the example of the author table, तो जिसमें हमने pages के ऊपर constraint लगाया था कि page number should be greater than 0. तो book में ऐसा ही होता है, the page numbers are always greater than 0. तो हम इसके अंदर क्या एक check लगा दिया कि हम गलती से भी we should not enter the negative page number over there. So that is what we meant by this check constraint. So similarly और भी जगह पे हम लगा सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, जैसे फीस है, सो फीस शुड नॉट गो नेगेटिव और लाइक दैट. जैसे आप लोगों को पता होगा देयर इज समवन फ्रॉम यस वंशिका यू आर फ्रॉम कॉमर्स. Yes, sir. वंशिका थोड़ा सा बता सकते हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में? हाँ जी सर क्रेडिट और डेबिट कार्ड में? हाँ सर डेबिट कार्ड बेसिकली जो होता है अपनी जो उसमें से जो अपने पैसे हैं वो हम अपनी सेविंग्स में से निकलवाते हैं, जो हमारी सेविंग्स हुई होती हैं, जो हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं उसमें से हम निकलवाते हैं, तो उसके लिए हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं. लेकिन हम जब हम ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं या फिर एक्सेस में मनी विड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास नहीं होती, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं. यस वेरी गुड सारा टेक्निकली इसने बता दिया है. सो समवन इनटू द लेमैन्स लैंग्वेज थोड़ा सा बताएगा. यस भव्या. भव्या ने छुट्टी की है कल तो और रिलैक्स होके आए हो आप? सर नहीं, आई वाज नॉट एट होम यस्टरडे. हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है. बता सकते हो डिफरेंस इन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? सर मुझे उतना ही समझ आया जितना उसने बताया वंशिका ने. हाँ तो उसको दोबारा बता दो क्या बताया वंशिका ने. दैट इज व्हाट आई वांट. तो शी सेड दैट डेबिट कार्ड तब यूज होता है जब हम अपनी सेविंग्स में से पैसे निकलवाते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड जब हमारे मतलब एक्सीड हो जाती है लिमिट, एंड फिर उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है. यस सो डेबिट कार्ड में क्या है हमारे पास, दैट इज अगर हमारे अकाउंट में 12,000 रुपए हैं, लेट्स से 12,000 रुपीज वी हैव इन अवर अकाउंट विद डेबिट कार्ड. क्लियर? तो डेबिट कार्ड से हम 12,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. वी कैन नॉट मेक ए ट्रांजैक्शन बियॉन्ड 12,000. सो दैट इज वी कैन नॉट बेसिकली जैसे 12,000 से बियॉन्ड ट्रांजैक्शन होगी नहीं. सो जो हमारा बैलेंस है दैट विल नेवर गो इन नेगेटिव. क्लियर? बट व्हाट हैपेंस इन ए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या किया होता है, एक लिमिट बनाई होती है हमारी. जैसे हमारी 50,000 रुपए की लिमिट बनाई है उन्होंने, तो अगर मेरे अकाउंट में आई हैव 12,000 रुपीज इन माय अकाउंट, अगर मैं 22,000 की ट्रांजैक्शन करूंगा, क्लियर,
सो व्हाट विल बी बैलेंस, मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा -10,000, क्लियर, बिकॉज आई कैन गो फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 50,000 प्लस जो जितने मेरे अकाउंट में है वो, और प्लस 50,000 दैट आई कैन मेक द ट्रांजैक्शन। ऐसे ही है वंशिका? यस सर। ठीक है, सो लाइक दिस वे। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है उसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड से क्या रिलेशन है, दैट इज सॉर्ट ऑफ ए चेक। ठीक है, कि डेबिट कार्ड में कभी भी हमारा बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इन ए क्रेडिट कार्ड बिकॉज हमारी लिमिट बनी हुई है और हम उस लिमिट को कभी भी यूज कर सकते हैं। एंड एज टोल्ड बाय वंशिका कि जो हम लिमिट यूज करेंगे उसके ऊपर हमें वी विल हैव टू पे दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। So basically you can say that we have borrowed the money from the bank, और जहां से भी हमने अपना क्रेडिट कार्ड बनाया है। So ये हमें बेसिकली हमारा इससे क्या रिलेशन है, that is how we are going to basically handle the check। इसके ऊपर हम चेक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। So anyone who's interested to answer on this? And I am requesting everyone should be here with the camera. So yes, Mr. Bajwa, Rajveer Singh Bajwa. जी सर। My question is default constraint. सर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो डिफॉल्ट वैल्यू एंटर कर दे शायद। हाँ, थोड़ा टेंटेटिव है अभी। So maybe we switch on to yes, Mr. Ishan. सर डिफॉल्ट में होता क्या है कि अगर कोई वैल्यू नहीं एंटर करेंगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने टेबल बनाते हुए दी हुई है वो यूज हो जाएगी। यस, तो डिफॉल्ट वैल्यू का यही यूज है कि अगर हम एट द टाइम ऑफ अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट एंटरिंग द वैल्यू, यूजर इज नॉट एंटरिंग ए वैल्यू, so automatically the default value will get assigned to that very attribute. So this is what we meant by the this one. Next, today we will focus on the primary key constraint and foreign key constraint. So we will take up the examples of these two, and let us say we open this now. Clear? So for this we will consider two tables. First I will show you the student table. So in this student table, a roll number is acting as a primary key. Clear? And what is the aim of the primary key? Someone wants to explain what is the use, इसका benefit क्या है हमारे पास? Yes, Gurleen. सर इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं वैल्यूज और कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, और इसका मेन पर्पस है that is its main purpose is that we want to identify a record uniquely. ठीक है, जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, so only मुस्कान are basically दो मुस्कान है हमारी इस क्लास में, so basically the duplicacy with regard to name is with the मुस्कान। ठीक है, बाकी सभी का नेम यहाँ पे क्लास के अंदर यूनिक है। क्लियर? So similarly what we want कि इसका पर्पस क्या है, that is प्राइमरी की, जैसे हमने रोल नंबर प्राइमरी की रख दी है, तो रोल नंबर मीन्स that is we are going to pinpoint किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, इस स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली जैसे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, सो वी हैव एम्प्लॉय आईडी वर्किंग एज दी प्राइमरी की, तो उसका पर्पस यही है। फर्स्ट इज दैट इज वी कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली इन दी डाटाबेस। नेक्स्ट है हमारे पास इसी टेबल में, दैट इज वी आर डिस्कसिंग दिस स्टूडेंट टेबल। सो इन दिस स्टूडेंट टेबल वी लुक एट द स्ट्रक्चर। So there is one more attribute is here, that is faculty ID. तो ये faculty ID क्या है? Faculty ID is working here as a foreign key. Clear? So first we look at the definition of foreign key. कि foreign key होती क्या है? So as you can see here, foreign key it uniquely identifies rows and records in another table. तो दूसरे टेबल में से अगर हमने uniquely identify करने हैं records,
सो फॉर दैट वी मेक यूज ऑफ फॉरेन की। और जैसे अगर हमने ये स्टूडेंट टेबल के ऊपर लगा दी हमने फॉरेन की, ठीक है, तो वी हैव दिस फैकल्टी आईडी। फैकल्टी आईडी का क्या मीनिंग है बेसिकली कि इस टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग है, जैसे रोल नंबर है, सो दिस इज रिगार्डिंग द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सिटी ऑफ द स्टूडेंट। और ये फैकल्टी आईडी इसमें डाला हुआ है, दैट इज कि उस स्टूडेंट के रिगार्डिंग अगर हमने फैकल्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी है, सो लाइक वी कैन हैव कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जैसे, और इसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, सो जो उसको टीचर पढ़ा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज, वी विल सी दी अनदर टेबल दैट इज दी फैकल्टी टेबल। तो इस टेबल में क्या पड़ी हुई है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ये फैकल्टी का आईडी है, फैकल्टी का नाम है, और सब्जेक्ट वो कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव वन मोर फैकल्टी, क्लियर। सो सिमिलरली द नेम ऑफ द फैकल्टी एंड विच सब्जेक्ट ही इज टीचिंग, ठीक है। तो फैकल्टी टेबल में फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम चाहते हैं कि वी वांट टू फाइंड कि इस स्टूडेंट को, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जैसे ये है सुखजीवन कौर है, तो इसको कौन सा टीचर टीच कर रहा है, क्लियर। सो फॉर दैट वी नीड टू ज्वाइन दीज टू टेबल्स। तो ये दोनों टेबल को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरेन की। अगर हमने फॉरेन की अप्लाई करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्रिएट कैसे करनी है फॉरेन की, सो यू कैन नोट डाउन दिस स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में क्या है, हमारे पास एक रोल नंबर है, रोल नंबर की डाटा टाइप हमने रखी है इंटीजर टाइप, स्टूडेंट का नेम है, इसकी डाटा टाइप हमने रखी है varchar, सिटी ऑफ द स्टूडेंट अगेन varchar, और रोल नंबर को हमने क्या बना दिया, रोल नंबर को हमने बना दिया प्राइमरी की। एंड इसके बाद हमारे पास आई अबाउट फॉरेन की, और इस टेबल के अंदर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर टेबल, जैसे ये है हमारे पास स्टूडेंट टेबल में जो फैकल्टी आईडी है, क्लियर, इसको हम बनाएंगे, वी विल कीप दिस एट्रीब्यूट एज फॉरेन की। और ये फॉरेन की लगाने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है, हाउ वी राइट द सिंटैक्स, सो दिस इज हाउ वी राइट द सिंटैक्स। सबसे पहले क्या रखेंगे, जिस एट्रीब्यूट को हमने फॉरेन की बनाना है, ठीक है, सो नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट विद द कीवर्ड, फॉरेन की इज द कीवर्ड है, जैसे प्राइमरी की कीवर्ड है ऐसे फॉरेन की इज ए कीवर्ड, एंड वी विल मेंशन हियर द एट्रीब्यूट जिसको हमने फॉरेन की बनाना है। और फिर वो रेफर किस एट्रीब्यूट को करेगा, दैट रेफरेंसेस, अगेन रेफरेंसेस इज ए कीवर्ड, रेफरेंसेस ये नेम ऑफ द टेबल है, दूसरे टेबल का नाम है, और ये उस टेबल के एट्रीब्यूट का नाम है, फैकल्टी आईडी, क्लियर। सो यू कैन सी हियर द एग्जांपल हियर in MySQL, I will show you both the tables. First है हमारे पास ये फैकल्टी टेबल है, and the second table is स्टूडेंट टेबल। तो ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में मैंने ये फैकल्टी आईडी को क्या बना दिया, फॉरेन की, और वो किसको रेफर करेगा, टू दिस फैकल्टी आईडी दैट इज ऑफ फैकल्टी टेबल, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या है इनका, कि मैं लेटर ऑन आई वांट टू सी दैट ये इंद्रवीर जो है ये किससे पढ़ रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है, अगर मेरे को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सो दैट आई विल हैव टू जॉइन दिस फैकल्टी टेबल, ठीक है। इन दोनों टेबल में से कोई बता सकता है पहले कौन सा टेबल बनेगा, विच टेबल विल बी क्रिएटेड फर्स्ट, दोनों टेबल में से सबसे पहले कौन सा टेबल क्रिएट होगा, फैकल्टी टेबल होगा या स्टूडेंट टेबल, so yes Vanshika, Student table. Student table will be created first. So now let's say Bhavya, yes Bhavya, what do you want to say? सर आई थिंक पहले प्राइमरी की वाला टेबल बनना चाहिए, प्राइमरी की दोनों में ही है, प्राइमरी की दोनों में ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले फैकल्टी टेबल बनेगा स्टूडेंट टेबल, आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल फैकल्टी वाला पहले बनेगा। सो भव्या इज राइट, पहले ये फैकल्टी टेबल क्यों बनेगा, बेसिक चीज है
देखो ये फैकल्टी टेबल में क्या है, जब हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, यू सी दी सिंटैक्स, मैंने ये कमांड लिखी हुई है आप लोगों के लिए, यू कैन सी दिस। जब हम ये स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम फैकल्टी टेबल को रेफर कर रहे हैं, वी आर रेफरेंसिंग फैकल्टी टेबल और फैकल्टी आईडी एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ये टेबल बना होगा तभी हम इसको रेफर कर सकते हैं, अगर हाउ वी कैन रेफर टू दिस टेबल इफ दिस टेबल इज नॉट क्रिएटेड। So first of all, Bhavya is right in answering that first of all we have to create the faculty table and then we can create the student table, क्योंकि student table में हम रेफर कर रहे हैं to the faculty table, तो जिस चीज को हम रेफर कर रहे हैं that should be, अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तभी हम उसको रेफर कर सकते हैं, clear? And in this scenario faculty table is also named as the parent table and the student table is also called as the child table, ठीक है। तो ये पहले क्रिएट हो रहा है, दिस विल बिकम द पेरेंट टेबल, कई जगह लैंग्वेजेस में आपको लिखा मिलेगा दैट इज दिस इज ए पेरेंट टेबल एंड दिस इज ए चाइल्ड टेबल, क्लियर। और जब भी हमने कोई डिलीशन करनी है तो सबसे पहले हमें कहां पे डिलीशन करनी पड़ेगी, फ्रॉम द चाइल्ड टेबल एंड देन वी कैन मेक ए डिलीशन फ्रॉम द पेरेंट टेबल, ठीक है। सो ये थोड़ा सा, ये तो काफी एडवांस टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों टेबल्स को अगर हमने ज्वाइन करके कोई ऑपरेशन लगाना है, सो आई विल रन हियर ए क्वेरी। सो दिस इज द क्वेरी, क्या इस क्वेरी में क्या है हमारे पास, लाइक इंद्रवीर इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन सिटी इज मुकेरिया एंड नेम ऑफ द फैकल्टी, जो इंद्रवीर को जो टीचर टीच कर रहा है, and the subject of that very teacher is electronics. Similarly another student is, यहाँ पे जैसे इधर नवदीप कुमार is a student here and he is taught by राम सिंह। So if you want to have a look at the query, ये query कैसे बनाई हुई है, so you can see the query here, clear? So you can see here the step number 2, step number ये जो है यहाँ पे मेरे पास ये जो highlighted है query, so this is where I have basically ये operation हमने कौन सा apply किया यहाँ पे, this operation is called the join operation। हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन के लिए हमें फॉरेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। So you can see here select student dot name, ये student dot name का क्या मीनिंग है कि स्टूडेंट टेबल का नेम एट्रीब्यूट, देन इज student dot city, तो student dot city का क्या मीनिंग है, student dot city is basically that is the, ये दिखाई दे रही है आपको नोटपैड वाली, Yes sir. क्लियर। सो दिस इज स्टूडेंट डॉट सिटी, तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट इज द टेबल नेम एंड सिटी इज द एट्रीब्यूट। सो सिमिलरली नेक्स्ट इज फैकल्टी इज द नेम ऑफ, क्या है, टेबल है, एंड नेम क्या है, नेम उस टेबल का एट्रीब्यूट है। सिमिलरली फैकल्टी इज द टेबल नेम एंड डॉट सब्जेक्ट। तो ये मेथड है हमारे पास क्वेरी को लिखने का व्हेन वी हैव, जब हमारे पास दो टेबल्स हो जाते हैं। मोस्टली अभी तक हमने जितनी क्वेरीज की हैं उसके अंदर हमारे पास सिंगल टेबल होता था, सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन 2 टेबल्स साइमल्टेनियसली। फिर हमें क्या ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल्स को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, स्टूडेंट कॉमा फैकल्टी, क्लियर, दीज आर द 2 टेबल्स दैट वी आर डिस्कसिंग। और उसको ज्वाइन करने के लिए दिस इज द मेथड, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वी हैव स्टूडेंट टेबल डॉट उसका फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू फैकल्टी टेबल का फैकल्टी आईडी एट्रीब्यूट। So this is how we can join these 2 tables based on the foreign key, ठीक है। इसके अंदर एक और हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अलाइसिंग। ये अलाइसिस का कंसेप्ट कैसे होता है, जैसे मैं इस क्वेरी को छोटा करना चाहता हूं, आई वांट टू रिड्यूस द साइज, तो मैंने स्टूडेंट के साथ ये ऐसे लिख दिया और फैकल्टी के साथ मैंने आई हैव रिटन विद स्पेस एफ,
तो जहां जहां पे स्टूडेंट है वहां पे मैं क्या कर दूंगा S, और जहां पे फैकल्टी है तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास क्वेरी का साइज छोटा हो जाएगा। सर आई हैव अ डाउट। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। So we can copy this one and the same query we can write it like this way. So the same query we have written with, but now with the concept of analysis, means जैसे ये स्टूडेंट टेबल है तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया S, फैकल्टी टेबल है इसका नाम मैंने क्या रख दिया F। तो अब मैं S और F से इन दोनों टेबल्स को एक्सेस कर सकता हूं। So this is the way of if I want to shorten the size of the query। हाँ जी, हाँ जी, यस दिलबाग। सर अगर हम फ्रॉम के बाद सर फैकल्टी सर पहले लिख दें, स्टूडेंट बाद में लिख दें, सर आउटपुट में चेंज आएगा क्या? फ्रॉम कहां पे लिख दें सर? अगर फ्रॉम के बाद फैकल्टी पहले लिख दें, स्टूडेंट बाद में लिख दें। और नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्या होगा, जो मर्जी टेबल पहले लिख दो बाद में लिख दो। सर उसके एट्रीब्यूट्स पहले नहीं आएंगे, फैकल्टी के पहले आ जाएंगे स्टूडेंट के। ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑर्डर डजंट मैटर। टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट आप पहले ले लो, रोल नंबर को चाहे आप लास्ट में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोल नंबर को आप जहां मर्जी ले जाओ, जो उस कॉलम को। ऑर्डर डजंट मैटर इन ए टेबल। जिस वे से हमने क्वेरी लिखी है उस वे से वो एग्जीक्यूट होगी वो क्वेरी। ठीक है, ट्राई करके देखो इसको। ट्राई दिस आउट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द ऑर्डर of columns as well as the order of rows doesn't matter in a table। ठीक है, किसी भी रो को हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। दैट ये नहीं कि रो नंबर 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, यू कैन कीप एट लास्ट आल्सो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सो ये जो है दैट इज फॉर दिस यू हैव टू बेसिकली प्रैक्टिकली वर्क ऑन दिस कंसेप्ट। थोड़ा सा ये एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक द टेबल्स एंड देन ये क्वेरीज जो है मैंने आपको जो दोनों डिफिकल्ट क्वेरीज हैं दैट आई हैव शेयर्ड, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। ये दो मेन क्वेरीज हैं आज की। ठीक है, एक तो ये है कि स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कैसे करना है, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएटिंग द टेबल, और बाद में ये क्वेरी कैसे लिखनी है हमने। So you can take the snapshot also and you can try it out at your end also। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। अगर आप जस्ट इसको थ्योरेटिकली क्रैम करने की कोशिश करोगे, so then the concept will become a bit difficult। Clear? So today we have added 2 more constraints. One is the primary key constraint and the other is the foreign key constraint। Yes, अजय प्रताप। यस सर। क्लियर है? यस सर। थोड़ा इन ये जो टॉपिक आज हमने कवर किए हैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द क्लास इज जस्ट कमिंग इनटू द क्लास एंड लुकिंग एट द कंस्ट्रेंट्स। ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कंस्ट्रेंट्स या नहीं, बाकी करके मेरे को नहीं लग रहा कि आप कोई इसको प्रैक्टिकली करके देख रहा है। अगर कर रहे होंगे मे नॉट बी मोर देन 2-3 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है कि आप पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा टाइम जो है दैट इज यू हैव टू गिव टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे देते हैं कि हमें डिफिकल्ट लग रहा है, और बाकियों को पहले हम बहुत इजी समझ लेते हैं, और इन दी एंड में क्या होता है कि जो डिफिकल्ट है उसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे, 70, 80, 100 तो किसी की आने नहीं, 100 मैक्सिमम 100 आ जाएंगे।
बट अगर हम कई सब्जेक्ट्स को ऐसे लेते हैं, बाद में हमें वो सब्जेक्ट्स भी डिफिकल्ट बन जाते हैं जो दे आर नॉट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। बट इफ यू विल नॉट स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो धीरे धीरे करके जो इजी सब्जेक्ट है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। So almost we have touched upon all the different aspects of this MySQL। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक, जिसमें लग रहा है कि आप लोगों को इसको और डिस्कस करना चाहिए, यू कैन ब्रिंग दैट टॉपिक, आप मेरे को बता दो, वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक आल्सो। क्लियर? सो बाय दिस वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन MySQL। ठीक है, और उसमें से हमने कई एडवांस टॉपिक भी कर लिए हैं। एंड स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, सो यू कैन आस्क अबाउट दैट। और जो प्रैक्टिकल फाइल है, सो प्लीज फिनिश इट अप दी प्रैक्टिकल फाइल ऑन टाइम। ये नहीं है कि फिर स्कूल वाले बोलेंगे कि इस दिन लेके आओ प्रैक्टिकल फाइल, फिर आप बोलोगे सर ये तो हमने अभी शुरू ही नहीं की हुई प्रैक्टिकल फाइल। सो प्लीज कंप्लीट दी प्रैक्टिकल फाइल ऑन टाइम। यस, कोई किसी का पॉइंट है? एनी पॉइंट रिलेटेड टू सिलेबस? क्लियर? एंड नेक्स्ट वी विल पिक अप दी, जो हमारे पास जो थ्योरी वाले जो टॉपिक हैं, वन इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड सेकंड इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईटी। ठीक है, तो ये दो थ्योरी वाले टॉपिक हमारे पास बच जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का भी ये एक टेस्ट भी होगा इन द मंथ ऑफ दिस दिसंबर मंथ। यू विल बी हैविंग ए वन फुल फ्लैज एग्जाम। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पाइथन हमने पहले कवर कर लिया था एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द MySQL। सो 2 थ्योरी टॉपिक्स आर लेफ्ट, उनको भी रिवाइज कर लेंगे। कवर हमने सारा कर लिया हुआ है, जस्ट वी आर फोकसिंग नाउ ऑन रिवीजन पार्ट। सो आई होप दैट नो क्वेश्चन इज देयर। यस अजय प्रताप, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो क्वेश्चन। तो नो क्वेश्चन दो सिनारियो में होते हैं, जहां हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं या हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना साथ साथ में। एंड देखो आज अजय प्रताप ने काफी वेटेज दी है टू आईपी क्लास, और थोड़ा इसने केमिस्ट्री का टाइम रिड्यूस किया है एंड ही हैज गिवन मोर टाइम टू आईपी क्लास। सो थैंक यू वेरी मच अजय प्रताप for giving the required weightage to IP class. Thank you very much beta for patiently listening to the class. Thank you everyone. Thank you sir.